मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको कसूर बगियाना से इस्लाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन आज के लाइव सेशन में जो आपके सामने मैं स्टोरी लेके आ रहा हूँ वो बड़ी ही दर्दनाक और दिल खराश है, क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन एक साल कबल जो है एक हमारा जो मसीही नौजवान है सलीम मसीह, इसको कत्ल कर दिया गया था ट्यूबवेल पर नहाने से पानी गंदा करने की वजह से। वजह तनाज़ा ये बना था और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और उनके जो भाई हैं वो बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे कि सलीम मसीह को कैसे कत्ल किया गया। और आज तकरीबन इस वाक़े को एक साल होने वाला है, अगले महीने शायद एक साल हो जाएगा। तो इस एक साल में मुलज़मान की क्या पोजीशन है, मुलज़मान कहाँ पर हैं और ख़ानदान इंसाफ के लिए कैसे जो है रोना पीटना इंसाफ के लिए है, और किस तरह जुल्म पर जुल्म इस ख़ानदान के साथ हो रहा है, वो अभी हम जो भाई इनके सलीम मसीह के भाई हैं उनसे हम जानते हैं। ब्रदर जी सलाम। सलाम अच्छा ब्रदर, वाक़या जिहड़ा पेश आया है जी सर। ਹੁਣ तक ਤੁਹਾਡੇ केस की ਕੀ पोजीशन है, तो मुलਜ਼ਮ कितने ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਗਈ, ਆਜੋ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਆਜੋ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਾਬਾ ਤਰਫ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੰਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਗਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ 5 ਵਜੇ ਘਰੇ, ਗਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਫੜੇ ਸੋ, ਸਾਬਣ ਫੜਿਆ ਸੋ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ, 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਲਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਕੇ ਝਟਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਫਸ ਮੇ ਵੀ ਤੀਲਾਂ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਤਾ ਸੰਗਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਟਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੂਨਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੂਠੇ ਗਾਠੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਲੀਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਠੇ ਗਾਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐ ਨਾਲ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹਲਦੀ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਕੂਵਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਯਾਤੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਵਕੂਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਯਾਤੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬੁਲਾਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰੜਗੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਉਹ ਜੈਸ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਸ ਸਾਲੂ ਬਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਬੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। नाज़रीन, सलीम मसीह की जो वालदा है वो भी अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है। उनसे भी हम पूछते, हाँ जी, मुंडे दे
ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਇਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਸ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब मुल्ज़मान की ज़मानत हमें तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था। जी मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी सलीम साहब, ये जो मुकदमे की जो सारी कार्रवाई है, माइक पर इसको जो है वो स्पॉइल करने का आगाज़ वहाँ से हो गया था, जी जहाँ पर मुद्दई मुकदमा जो है उसको ना तो अपनी दरख्वास्त के मंदरजात का इल्म है, जी ना ही ये दरख्वास्त उसकी मौजूदगी में लिखी गई है, जी और ना ही ये दरख्वास्त उसने अपने हाथ से लिखी है। जी मुद्दई मुकदमा को बिल्कुल उसके मंदरजात का इल्म नहीं है कि दरख्वास्त किसने दी है और किस वक्त दी है, और जो है इसके मंदरजात क्या हैं। जी और जिन लोगों ने ये दरख्वास्त दी है जी। उन्होंने इसके एक मरकज़ी मुल्ज़म अली शहजाद को इंटेंशनली उस दरख्वास्त में से स्किप किया। जी और जब मुद्दई मुकदमा के इल्म में ये बात आई कि मेरा मरकज़ी मुल्ज़म अली शहजाद दरख्वास्त FIR में नामज़द ना है, जी तो उस वक़्त उसने उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द किया। और ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी जो भी इन लोगों को लेकर चल रहे थे, मैं उनके बारे में पूरी तरह इल्म नहीं रखता, लेकिन वो उन लोगों ने 20 दिन इस बात में भी इनको डिले करवाया कि अगर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में अली शहजाद को नॉमिनेट करना ही था तो उसमें 20 दिन का डिले जो है ये क्या मायने रखता है। जी फिर बाद अज़ां ये भी इनके ज़रिए हमारे इल्म में आया है कि वो जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जो अली शहजाद जो नॉमिनेट किया गया था उसको भी एक फ्रॉडुलेंटली एग्जीक्यूटेड जो स्टैम्प पेपर है उसके ज़रिए एग्जोनरेट करवा दिया गया। और उसके बाद इनका जो मेडिकल एविडेंस है उसको भी मैनेज किया गया है। उसके मुताबिक उसकी वजह ये है कि मेडिकल एविडेंस के मुताबिक डेथ हो रही है 28/2/2020 को, जी और 24 घंटे का डिले जो है इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो है वो कॉज करवाया गया है। और इस दौरान में मेडिकल एविडेंस को मैनेज किया गया है, जिसमें मेडिकल एविडेंस जो है वो टाइम ऑफ अक्रेंस को जो है उसमें डिस्टर्ब करता है। ये सब ज़्यादती इस ख़ानदान के साथ हुई है, और ये वो ज़्यादती हैं जो हमारे अपनों की तरफ से हुई हैं। अब मैं उस तरफ आता हूँ कि हमेशा की तरह पुलिस अथॉरिटीज़ का, इंतज़ामिया का रवैया इनके बारे में, और हमारी जो मसीही कौम के केसेस में जो है उनका रवैया हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर बदनीति पर मबनी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस जो है वो डाइंग डेक्लेरेशन था, जो मकतूल का नज़ई बयान था, जो कि ड्यूली रिकॉर्डेड है और जो कि सफ़ाए मिसल से गायब कर दिया गया है, उसको रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, जिसके सिलसिले में मुद्दई मुकदमा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर दरख्वास्तें भी देता फिर रहा है। यानी कि पुलिस ने भी इस मुकदमे को मुल्ज़मान के हक़ में करने में कोई कसर उठा ना रखी है। लेकिन सलीम साहब, मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि गिला गैरों से नहीं है, गिला अपनों से है। जो अपनों से हो सकता था वो तो उनको करना चाहिए था। डॉक्टर साहब, चले मान लिया ज़मानत हो गई, मुल्ज़मान ने ज़मानत किसी तरीके से ले ली, तो क्या जो लोग इस केस को अपना लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि कैंसलेशन लगाई जाती, उनकी बेल जो है कैंसलेशन के लिए, बेल कैंसलेशन के लिए दायर की जाती है? जी बिल्कुल, इट इज़ करेक्ट that the bail is a right of the accused person, but at the same time it is also correct that to move a cancellation for the bail, it is also the right of the complainant, which has not been exercised within the due time, and we are afraid that now it will not be as fruitful as it could have been if it would have been applied within time. थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बूढ़ी वालदा जो है अपने बेटे के इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें भी खा रही है, अदालतों कचहरियों में भी जा रही है, और तारीख पे तारीख जो है वो दे दी जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ज़िम्मेदारान थे उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुल्ज़मों को कैफरी किरदार तक पहुँचाते और
मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाते, क्योंकि ख़ानदान के लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ना वो ज़्यादा जानते हैं किसी चीज़ के ताल्लुक से, ना वो कानून से वाकिफ़ हैं। लेकिन आप लोग जो आगे लगे थे, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मुल्ज़मान जो है उनको जेल में रखा जाता, या उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई थी वो कैसे बाहर आ गए, कैसे उनकी ज़मानतें हुई। इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया, हाई प्रोफाइल केस था, दुनिया भर में इस केस के ताल्लुक से मुजाहरे हुए। और भाई अभी तक आप लोगों की किसी ने कोई माली मदद की? नहीं सर, किसी भी कोई नहीं। और इस केस से बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया, माल बनाया, लेकिन ख़ानदान को बिल्कुल भी गरीब ख़ानदान था, कोई उनकी कोई माली मदद किसी किस्म की गई हो वो भी नहीं। और जब हम इस केस को मुख्तलिफ एंगल से हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे ही अपने जो हैं हमारी किरदार कशी पे लगे हुए थे, हमारी किरदार कशी की जा रही थी। मेरा रोना और मेरा जो दुख समझने की कोशिश करें कि हमारे ख़िलाफ़ बिल्कुल जो जिन लोगों को हम मतलब कि नहीं जचते, जिन लोगों को ये नहीं काबिल कबूल कि हम किसी केस को उस हद तक लेकर जाएं जहां पर जो मुतासरा ख़ानदान है, विक्टिम फैमिली है, उनको इंसाफ मिल सके, वो मौका पर जाकर रंग बिरंगी हमारी जो फेक वीडियोस बनाकर मुतासरा ख़ानदानों को दिखाते हैं, हमारी किरदार कशी करते हैं और हमें बीच में से निकाल देते हैं। निकालने की वजह सिर्फ ये कि वो माल बना सकें, पैसा कमा सकें, केस को कैश कर सकें। जब केस से उसके पैसे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट पास हो जाता है, तो उसके बाद फिर मदई मुकदमा जो है, मुतासरा ख़ानदान जो है, उसको फिर पूछा भी नहीं जाता। और मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने केसेस हम कर रहे हैं उसमें खुदा का शुक्र है कि हम अभी तक वो मुल्ज़मान जो है जेलों में बंद है, और तकरीबन 1-1 साल हो गया जिन लोगों के लिए हम केस लड़ रहे हैं। और हमें साफ़ रास्ता अपना साफ़ इसलिए किया जाता है, हमें हटाकर, कि वो सारे केस को ख़राब किया जा सके, भारी रकम बटोरी जा सके, पैसा कमाया जा सके, और फिर अपने जैसे 2 नंबर लोगों से हमारे खिलाफ़ वीडियो बनवाकर कि ये हमारे नाम पे पैसा बटोर रहे हैं या हमारे नाम से पैसा कमा रहे हैं, हमें रास्ते से निकाल दिया जाता है। ये इस माँ के दुख को, इस माँ के दर्द को समझने की कोशिश करें, जिसका जवान बेटा बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और उसके ज़ख़म जो है वो देख नहीं सकता था कोई। जिस तरीके से उसके नाजुक अज़ा को जलाया गया, काटा गया और करंट लगाए गए, करंट के झटके दिए गए। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस केस के लिए एक दफ़ा फिर हम यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए अपने ताईं जो है आवाज़ उठाएं। और हमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई खौफ ख़तरा नहीं है। जितनी मर्ज़ी मुल्ज़मान जितने मर्ज़ी बासर हों, हम यहाँ पर गोलियाँ खाने के लिए भी तैयार हैं, लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं। और लेकिन ख़ानदान को हमारा जो इंटरेस्ट सिर्फ वो ये है कि मुल्ज़मान कैफ़े किरदार तक पहुँचें, उनको इंसाफ दिलाया जाए। और अगर इस किस्म के वाक़यात को हम नहीं रोकेंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, और आज अगर इस ख़ानदान की बारी है तो कल मेरी बारी होगी, कल फिर आपकी बारी होगी, इसी तरह फिर लाइनें लग जाएंगी यहाँ पे। तो मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए आप हमारा साथ दें। इस केस को हम फिर से टेक ओवर करेंगे, इसको हम आगे लेकर जाएंगे, और हम पूरी हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों ने ये इस गरीब ख़ानदान के साथ और सिर्फ एक पानी के ट्यूबवेल पर नहाने की वजह से, पानी प्लीद करने की वजह से उसको तअस्सुब का निशाना बनाकर कत्ल किया, उनको हम कैफ़े किरदार तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि हम ख़ानदान को इंसाफ दिला सकें और इस पर हम दोबारा से आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।